what they think, how they talk. We can generate the opportunities for our growth. So we have to think either we are grabbing the opportunities or we are generating the opportunities. The Gita learning is this one. श्रेयांश स्वधर्मो विगुणो पर धर्म प्रसार स्वधर्म निधनम श्रेय परम धरो भया। यदि मैं अपने काम को छोड़कर किसी दूसरे के काम की तरफ अपनी ड्यूटीज को छोड़कर दूसरे कामों में लग जाता हूं तो मैं स्वधर्म नहीं निभा रहा हूं। Come to the point. How many entrepreneurs are focusing these 6-7 areas or some more areas? How they are doing their business, how they are adding their values to the customer. Think only how effectively they are utilizing their capital. This is a big learning for every entrepreneur or every person. Either we are a student or we are a professional. We have to understand. When we are, जब मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा पहला स्वधर्म है कि मैं बेस्ट एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट करूँ, बेस्ट तरीके से पढ़ाई करूँ और बेस्ट तरीके से ही एग्जाम देकर अच्छे मार्क्स प्राप्त करूँ। लेकिन क्या मैं जो पहले के 3 प्रक्रिया मैंने बोली, बेस्ट तरीके का सिलेक्शन और बेस्ट तरीके से पढ़ना, क्या मैं लाइफ में एडॉप्ट करता हूँ एज एन स्टूडेंट, एज एन एंटरप्रेन्योर? क्या मैं बेस्ट प्रोडक्ट में जाता हूँ, बेस्ट तरीके का डेटा कलेक्शन करता हूँ, बेस्ट तरीके से इन चीजों को अपने जीवन में करता हूँ? दिस इज अ बिग क्वेश्चन. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. व्हाट शुड बी आवर अप्रोच इन आवर बिजनेस? हमारी थिंकिंग बिजनेस में कैसी होनी चाहिए? एनीबॉडी कैन हेल्प मी? पहले के बाद थोड़ा आपको टेस्ट आया होगा कि व्हाट वी कैन थिंक, हाउ बिजनेस वी कैन एंजॉय, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच वी कैन generate at our workplace. Please. We should understand our strengths, weakness, opportunities. Okay. So we should identify all the things. Okay. There are 2 theories which are very popular. One is result orientation. Everybody thinks when we are doing business we should get some result. The second theory is, what are the difference between these 2 theories? Gita, give the answer of these 2 theories. Which theory is best? Which theory we have to adopt in our business? Process oriented. Process oriented. Process. But everybody too quickly, I want result. We are saying it should be process orientation, but all the time we are talking about results. So there is a big gap between our thinking pattern and our real life. Why? Because we doesn't understand the philosophy of Gita. We have not gone through what should be the, this is the most used sloka of the Gita, but 100%, not 100%, 99% misused. कर्मण्येवाद कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमाते संगोष. What does it mean? कर्म का करना फल की चिंता किए बिना. फिल्मों ने इसको क्या किया? जो अभी आपने बोला, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान. कहाँ लिखा है ऐसा? This is the 100% misunderstood. आप मुझे बताइए कहाँ लिखा है इसमें फल की इच्छा मत करो? कर्म के अनुसार फल मिलेगा. केवल आपका अधिकार कर्म करने पर है. So you have to complete the process. When you will complete process, you will automatically get result. Whatever you are doing, if you are doing 100% in a systematic manner, if you are following the SOP of your process, sir,
you are following your SOPs, you will get 100% quality. Now, if you are diverting or you are deviating your formulas or you are deviating your processes, then you will not get the same product. Otherwise, all the time, 100% you will get the same product or same service. If you are following 100% SOPs. Why ISO 9000 came in India? Directly related to the business now. Why? This is to harmonize the business. No. Improve the quality. To standardize your processes of your product or your services, nothing else. You have to make certain boundaries and you have to play between these two boundaries only. But what has happened, people have made their boundaries like this. I will play between these two things. When you will squeeze your boundaries, your product will automatically streamline and you will produce better quality. And literally the generation of generating the idea of ISO in Western countries, the source is only the Gita. They are mentioned in many places because they know the value of this word. आप अपना कर्म कीजिए. Are we doing our karmas 100% in a systematic manner? रेड लाइट पर कोई पुलिस वाला है तो हमारा बिहेवियर क्या होगा और यदि नहीं है तो हमारा बिहेवियर क्या होगा. स्मॉल एग्जांपल, हार्डली 30 seconds or 1 minute saving, but what would be our behavior? Same behavior or different behavior? Different. Why? Because we are not taught. आजकल तो कैमरे आ गए, बिल्कुल नहीं पड़ता. सर गलत कह रहे हो. रोजाना कितने चालान करते हैं? बाद में समझ आती है. नहीं, बचपन उसमें उनका दोष नहीं है सर. हम बचपन से डेवलप ही ऐसे हुए हैं. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अवर अपब्रिंगिंग. हमें लाइफ में किसी ने सिस्टमेटिकली डेवलप करने का प्रयास नहीं किया. एवरीबॉडी वांट. हमारी जो पीढ़ी है, हम बिजी रहे अपने कैरियर को डेवलप करने में और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में. हमने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं की और अगली पीढ़ी जो हमारी आ रही है वो और भी खतरनाक है. दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर किड्स. उनके तो आया पाल रही है. तो डू यू थिंक दे विल बी द राइट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? दिस इज अ बिग सब्जेक्ट. You think this is a small subject, but this is a big subject. People are not understanding as on date. After 15 years or 20 years, people will understand what we have done. If you want to develop this country, you have to do the systematic upbringing of your youth. आज इंडिया में मार्केट वर्ल्ड का नंबर 1 है. अभी हम एक स्लाइड में बात करने वाले हैं. लेकिन हमारा बिहेवियर कैसा है? What is our behavior pattern as a citizen of India? What is our behavior pattern as a citizen of society? Are we 100% following the systems or procedures of the society? Why? Pardon, sir? We are thinking about ourselves only. Yes. अभी तो गीता कहती है कि think beyond I, me, my and myself. आप अपने से बाहर निकल ही नहीं रहे हम लोग. So, जो ये श्लोक है इसका पर्पज ये था कि वो अर्जुन को यह बताना चाहते हैं और यदि मेरी भाषा में चले तो बुद्धि हमारे मन को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि तुम्हें केवल अपनी प्रोसेस कंप्लीट करनी है. फॉरगेट अबाउट रिजल्ट. ये हमें बताया गया. लेकिन वो कहती है रिजल्ट की तो इसमें बात ही नहीं कर रहा. वो कह रहा है कर्म देना ना देना वो मेरा काम है. फॉरगेट कहीं वर्ड नहीं है. यदि आप एक अच्छे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट को भूल जाएंगे. मुझे आईएएस नहीं बन रहा तो क्या प्रिपरेशन कर पाएंगे? मैं क्यों भूल जाऊं फॉर रिजल्ट को? लेकिन मुझे याद रखना प्रोसेस कंप्लीशन. आज बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर में मैं बहुत जाता हूँ कोचिंग के लिए, कई बार काउंसलिंग के लिए. वहाँ बच्चे जो 10 बार एग्जाम देने के बाद भी पढ़े हैं. क्यों पढ़े हैं? एज तो निकल गई उनकी. क्यों पढ़े हैं? नहीं, आज कर भी
निकल गई, वाई दे आर इन मुखर्जी नगर, क्वेश्चन ये है। कुछ वो सोचे नहीं इसके अलावा, haven't thought beyond that. They are enjoying of the money of their, that money has been earned with the dot. We have to think कि हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। तो गीता हमें सिखाती है कि हमारे बिजनेस में हमेशा जो अप्रोच हो वो प्रोसेस ओरिएंटेशन की हो। हम जितनी भी प्रोसेस हमने डिजाइन किया, दिस इज माय चॉइस ना, मैं कौन सी प्रोसेस डिजाइन कर रहा हूँ, उसके पैरामीटर मैं कहाँ सेट कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसमें डेविएशन मत कीजिए। हम गलती क्या करते हैं कि पहले प्रोसेस डिजाइन करते वक्त भी बहुत बड़ा गैप रखते हैं, उसके बाद में भी गैप चाहते हैं। आज मार्केट में सबसे बड़ा धोखा है सेल। सेल का जन्म कहाँ से हुआ? अच्छे प्रोडक्ट की सेल कभी लगती है? घटिया होने भी लगे, नहीं, घटिया होगा या एक्सेस होगा। तो आप कभी सोचिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिक्वेट एफर्ट टू डेवलप बिजनेस। हम अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए किस तरह की सोच गीता के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, रिसर्च। जो चेतना की बात गीता करती है, व्हाट डू यू मीन बाय चेतना? चेतना किसे कहते हैं? Awareness. अवेयरनेस इंग्लिश ट्रांसलेशन। चेतना को थोड़ा एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें। इंस्टिंक्ट, इंटरनल इंस्टिंक्ट। ओके, और already told you about SWOT, strength, weakness, ability, ओके threats. ओके, और इंट्रोस्पेक्ट करना। ओके। चेतना का मतलब है मेरी पूर्ण चेतना तब कही जाएगी जब मेरे पास मेरे पांचों W, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब अपनी लाइफ में भी यूज कीजिएगा। चेतना को हमने बहुत बड़े ऋषियों मुनियों से सुनोगे तो वो घंटों आपको चेतना में घुमाएंगे कि चेतना आत्मा से आती है, चेतना इधर से जाती है, उधर से जाती है। वेरी सिंपल मीनिंग इज व्हेन वी नो द आंसर व्हाट वी आर डूइंग, that time we are fully conscious. If we are doing without conscious, अनजाने में काम कर रहे हैं, जो कि हम लाइफ में लगभग 99% गीता की भाषा में हम अनजाने में ही करते हैं, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो हम अपनी कॉन्शियस को जगाने का प्रयास करें। तो उसके लिए होगी सबसे पहले रिसर्च। हाउ मच डेटा आई हैव गैदर्ड। यदि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने कितनी रिसर्च की है इस बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस में मैं जा रहा हूँ, या मैंने जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, या जो मेरा मार्केट प्लेस है मैं नए मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेच सकता हूँ। तो रिसर्च इज द फाउंडेशन ऑफ अवर डेवलपमेंट। लेकिन इंडिया में रिसर्च पर कितना खर्चा होता है? मैं एसएमएच की बात करूंगा तो शायद वो 2% भी नहीं है। इंडिया में अभी जो रिसर्च पर रेशो आता है टोटल इन्वेस्टमेंट का, हार्डली 2%। और वेस्टर्न कंट्रीज में द बजट इज मोर देन 10%। So what we are doing as a businessman? Second is ecosystem mapping. मैं अपने प्रोडक्ट की इकोसिस्टम कितना मैप करता हूँ? Who is my right supplier? या इकोसिस्टम से वेदर पर बच जाइएगा। बिजनेस इकोसिस्टम है, who is my supplier, who is my biggest customer, who is my right resource, methodology, उन सब की बात करते हैं। तो आपने कितना रिसर्च किया है कि मेरे मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ता माल और जिसकी कंसिस्टेंसी हो। एक बार तो बहुत सारे लोग दे देते हैं, who can provide the raw material consistently. आज यदि आप ऑटोमोबाइल बिजनेस में देखें, they don't have any go down. Maruti is producing more than 10,000 cars per day, but they don't have any go down for their inventory. They either they work on JIT or they work on JOT. ट्रक आएगा,
असेंबली लाइन पर अनलोड होगा, असेंबल होगा, गाड़ी खड़ी होगी, टेस्टिंग में चली जाएगी। दिस इज द लिटरली इकोसिस्टम। व्हाट वी डिड एज एन SMEs, एक बड़ा सा गोदाम लेंगे, उसमें रॉ मटेरियल भरेंगे, सोचेंगे बिजनेस नहीं करे कल को इस रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाए। आर वी डूइंग बिजनेस और वी आर डूइंग समथिंग एल्स? सर, so we have to change our thought process. Spot growth opportunities. मेरे ग्रोथ किन किन एरियाज में मैं और डेवलप कर सकता हूँ? Either my methodology can be developed, my manpower can be developed. आज हम manpower को अभी बहुत ठीक से सर समझ नहीं पा रहे, but time has come when you have to focus on your manpower, because talent is not easily available as on date. You can get the man, but you cannot get the manpower. You have to understand this difference. What is man and what is manpower? You have to develop. Now your whole system has been collapsed because there is a big gap between academia and industry. I have heard a lot in this area, and I have met more than 200 institutions for a survey purpose. They think the government organization thinks we are doing our best efforts, whatever agenda we are getting, we are applying. Who is giving agenda? Nobody talks about it. And private institutions, they think, sir, this is our business. First we have to earn money, then we have to think something else. This is the duty of the industry. They have to recruit and they have to develop. And no doubt good industry are recruiting the academics. What is the position of MBA now? How many MBAs are getting job? Are you aware? This year, MBA admission would be lesser than last 5 years average. And that dip would be more than 20 or 30%. Because MBAs are not getting job. What is the difference between MBA and non-MBA? Are you getting any difference between two gentlemen? If you are selecting one person from Meerut University who is topper of the list, or you are recruiting the person from good MBA, what kind of difference you are visualizing? Is there any difference? When students are completing BTech, what kind of mental difference, thought process difference you are visualizing during your interview process? No knowledge, कोई Why? knowledge, because of our education system. Then who is at fault? We are blaming the young generation, literally we are at fault. Who developed that ecosystem? We have developed, na? Why we are blaming to the next generation? Madam, am I right or wrong? Because you are dealing with these things, I know you well. So we have to think like this when we are doing our business. Idea of generation. Experimental ideas. These are the things. Lead generations. What does it mean, lead generations? As an entrepreneur, what is the meaning of lead generations? Basically, where you can get some more business from. Yes. Where is our next generation where we can sell our product? How we can develop the need? Why the people are focusing, why are people so much investing on advertising? Even some companies have invested crores and crores of advertising and they do not have any manufacturing facility. Why? Now the situation has been. बिकता है वो बिकता है. This is today's क्या कहना चाहिए, आज का वो नारा है, जो बिकता है वो बिकता है. That's the only reason कि people are. This is one thing. Okay. So lead generation means you have to find out the new ways and means to sell your business product or your services. Next is
जो आप माइंड में डेवलप कर सकते हैं वो बिकता है। पहले दिखाने के लिए आप विंडो शॉपिंग में प्रोडक्ट डिस्प्ले करते थे। नाउ नो डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट, यू हैव टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ यंगस्टर्स। You have to do your marketing like earlier people were using the ornamental goods, gold goods as a ornamental for the purpose of marriages. अभी क्या मैरिज के बाद कोई भी गर्ल या कोई भी औरत उन ऑर्नामेंट को कभी सेकंड टाइम बिना किसी मैरिज के यूज करती है क्या? बहुत रॉ आइडिया है। Then why we are investing money in that gold? Investment के लिए तो गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिएगा। Then why you are giving the money of the making charges जो 40% तक चले जाते हैं? 40% मेकिंग चार्जेस देते हैं ना सर? मार्केट सर्वे है 40% लेते हैं, 30% से कम पे तो कोई बिजनेस ही नहीं है गोल्ड का। क्यों करते हैं मैडम? तो दिखता है तो बिकता है, फिर तो दिखाने के लिए करते। किसको दिखाना है? सोसाइटी को। कहाँ कौन देखता है? तो शादी में कोई रुकता नहीं। ये गलतफहमी है हमारी सर, को देखने की बेस्ट है, कौन रुकता है? आजकल तो लोग वरमाला के टाइम तक नहीं रुकते। आप शादी का सर्वे कीजिए, मैं इन चीजों में बहुत डेप्थ में स्टडी करता हूँ, इसलिए आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप वरमाला के टाइम पे देखिए कितने लोग होते हैं, फिर भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ आवर अपब्रिंगिंग। सिक्योरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। सिक्योरिटी के लिए तो आप बॉन्ड लेकर रखिए, गोल्ड का जितना रेट बढ़ेगा वो आपका दाम बढ़ेगा। तो हमने न्यू आइडिया जनरेट करना बंद कर रखा है। वी थिंक इन ए कन्वेंशनल मेथड। इसीलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस में। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लें उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली करें। एक बिजनेस डेवलप करने का ये आइडिया है, हम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट ले आते हैं लेकिन उसको हाफ हार्टेडली, हाफ माइंड से या किसी और को दे देते हैं। और उसका रीजन भी ये होता है कि हमने जब उस प्रोडक्ट को या सर्विस को या डिजाइन को लाते हैं तो हमारे अपने एफर्ट्स नहीं होते, क्योंकि हमने रिसर्च नहीं की होती है। आइडिया कहाँ से मिलता है? अरे मेरा मित्र कह रहा था आजकल इसका बिजनेस बहुत हो गया, थोड़ा ट्राई करें। और गीता कहती है कि उधार के अनुभव कभी काम नहीं आते। गीता कहती है कि उधार के अनुभव, उधार का अनुभव मीन्स जो किसी दूसरे ने दिया है तो कभी काम नहीं आते। आप अपनी लाइफ में देखिएगा। और गीता ये भी कहती है कि कितने संसार हैं। आइडिया के साथ हम बात करते तो हम एक दुनिया मानते हैं शायद। इस कमरे में लोग बैठे हैं, इस कमरे में कितनी दुनिया है इस टाइम? जितने लोग बैठे हैं उतनी ही दुनिया बैठी है। क्योंकि हम लग रहा है कि हम इस कमरे में बैठे हैं, ये कमरा है। ये कमरा नहीं है। सबका सोचने का तरीका, सबका सेट ऑफ नॉलेज, सबका थिंकिंग पैटर्न, सबका एक्सपीरियंस, सबकी अपब्रिंगिंग, सबके वैल्यूज, सबके बिलीव डिफरेंट है। तो कई बार हम अपने बच्चों से पूछते भी हैं कि तुम किस दुनिया में रहते हो? वो तो रहता तो मेरठ में ही है, तो दुनिया क्या पूछनी उससे? उसका पर्पज ये है कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है। तो गीता इन सब के आंसर हमें देती है कि हम जब भी ये सब काम करें। और वो क्या कहती है, उससे पहले एक दो और बात करना है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैनेजमेंट, कि मेरा सबसे अच्छा एम्प्लॉय कौन होगा, मेरा सबसे अच्छा सप्लायर कौन होगा, मेरा मार्केट में जाने वाला जो मेरा प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला है वो कौन होगा। ये हमें सब ढूंढना पड़ता है, वो तैयारी है। और लास्ट है इस एरिया में एनालिसिस डेटा। हम कितना डेटा कलेक्ट करते हैं ऑनेस्टली, कितना एनालाइज करते हैं और कितना हम उधार के अनुभव पर जिंदा रहते हैं, सोचिएगा। और गीता क्या कहती है? युक्त आहार व्यारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगी भवत दुःख।
इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप हर काम के लिए युक्ति युक्त पूरी चेष्टा कीजिए, अपने कर्म करने में कहीं भी कोई कमी मत छोड़िए। और यदि हम दोनों काम करेंगे, युक्ति युक्त चेष्टा करेंगे और पूरा उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, तो फिर रिजल्ट ऑटोमेटिकली वही आएगा जो हमने डिजाइन किया।